અનંત અનંત ભાવ ભેદથી ભરેલી ભલી અનંત અનંત નાય નિક્ષેપે વ્યાખ્યાની છે. સકલ જગત હિત કારિણી હારિણી મોહ તારિણી ભવાબ્ધિ મોક્ષ ચારિણી પ્રમાણી છે. ઉપમા આપ્યાની જેને તમારા ખવીતે આપવાથી નિજ મતિ મપાઈ મેં માની છે. અહો રાજ ચંદ્ર બાળ ખ્યાલ નથી પામતાય જીનેશ્વર તણી વાણી જાણી તેણે જાણી છે. ગુરુરાજ તણી વાણી જાણી તેણે જાણી છે. ઓ જય સદગુરુ. બહારથી જે મહેમાન મુમુક્ષુ આવ્યા છે એમને કોઈ વિષય ઉપર જાણવાની ઈચ્છા હોય તો એના અનુસાર લઈએ. ભીખાભાઈ, હા, આ બધાને કોઈ વિશેષ જાણવાની ઈચ્છા હોય તો એના ઉપર સ્વાધ્યાય લે, નહીં તો અમારે રોજ ચાલે જ છે. મશીન પહેરીને આવો છો. સ્વાધ્યાયમાં અનુભૂતિના ઉદ્ગારો. પૃષ્ઠ સંખ્યા 19. વિચાર નોંધ 2, તારીખ 3/4/1957, રાતના 10:30 વાગે. અહો જીવો, અધિક પુરુષાર્થી સમ્યક દ્રષ્ટિ જીવનો મહિમા અમે શું કહીએ. સમ્યક દર્શનથી જીવ ઉપર જાણે જાદુ પથરાઈ જાય છે. આજે એને સમ્યક દર્શન થાય તો એ જીવની શું દશા થાય છે એ કહે છે કે અહો જીવો અધિક પુરુષાર્થી, જે ઉગ્ર પુરુષાર્થ કરે છે એવા સમ્યક દ્રષ્ટિ જીવ. જ્યાં સુધી યથાર્થ, આ બધાને ગુજરાતી સાંભળવું છે, આ બધાને હિન્દી. हाँ, हिंदी में बोले गुजराती. तमन बधाने हिंदी में ख्याल आवे? आज बहार थी आए छे बधा. तो अधिक पुरुषार्थी सम्यक दृष्टि जीवनो महिमा अमे शू कहिए. सम्यक दृष्टि एटले यथार्थ रूपे जोवानी दृष्टि. यथार्थ एटले जेवो छे एवो ज जोवो. अहींया जोवो एटले जाणवो. जोवानो अर्थ छे अहींया जाणવાનો. आँखोथी जुओ एम नहीं,
જ્ઞાનથી જાણવું, જે જેમ છે તેમ જાણવું, એનું નામ સમ્યક દ્રષ્ટિ કહેવાય છે, યથાર્થ દ્રષ્ટિ કહેવાય છે. શું જાણવું? શરીરને શરીર જાણે, આત્માને આત્મા જાણે, સ્વને સ્વ જાણે, પરને પર જાણે, માનને માન જાણે, અપમાનને અપમાન જાણે, નિંદાને નિંદા જાણે, હર્ષને પ્રશંસાને પ્રશંસા જાણે, બાળકને બાળક જાણે, સ્ત્રીને સ્ત્રી જાણે, પુરુષને પુરુષ જાણે, બધું જેમ છે તેમ જાણે. જાણીને શું કરે? કાંઈ ન કરે. જેમ છે તેમ જાણે. કોઈ આપણે નિંદા કરતા હોય તો એને નિંદક તરીકે જાણે, કોઈ આપણી પ્રશંસા કરતો હોય તો એને પ્રશંસક તરીકે જાણે. બસ. પણ નિંદા કરવાવાળા પ્રત્યે દ્વેષ ન કરે અને પ્રશંસા કરવાવાળા પ્રત્યે રાગ ન કરે. બંને જેમ છે તેમ જાણે. ઉલટું ન જાણે. નિંદકને પ્રશંસક ન જાણે ને પ્રશંસકને નિંદક પણ નહીં જાણે. ઉલટું ન લે. જે જેમ છે એમ જ જાણે. સારાને સારું જાણે, ખોટાને ખોટું જાણે, આગને આગ જાણે, પાણીને પાણી જાણે. પણ એવું નહીં કે પાણીને અગ્નિ જાણે ને અગ્નિને પાણી જાણે. ઘોડાને ઘોડો જાણે, ગધેડાને ગધેડો જાણે. પણ એમને કે ગધેડાને ગધેડો જાણે ને એકબીજા ઉપર આરોપિત ન કરે. જે જેમ છે તેમ યથાર્થ. અને જાણી અને એને જ્ઞાનમાં લઈ લે છે કે ભાઈ આ આમ છે. કોઈ દુષ્ટ હોય તો એને દુષ્ટ તરીકે જાણે. દુષ્ટને કોઈ સજ્જન તરીકે ન જાણે. એના કોઈ વખાણ ન કરે, આ ભાઈ કેટલા સજ્જન છે, એમ ડુપ્લિકેટ નહીં. જે જેમ છે એમ જ છે. આજકાલ એક નવી આધુનિક દાર્શનિકોમાં એક પદ્ધતિ ચાલી ગઈ છે. पुराने अपने जो हिस्ट्री अथवा पुराण में जो भी ऐसे पात्र हो गए हैं कि जिन्होंने खोटे कर्म किए, उनकी अच्छाइयाँ ढूंढ करके उनको अच्छा साबित करना. वो आजकल ऐसा लोगों में कुछ नया चाहिए ना. राम को तो भगवान मानते हैं सब, पर अब ऐसा है कि रावण कैसे भगवान था, दुर्योधन कैसे अच्छा था, कर्ण कैसे अच्छा था. अभी एक सीरियल आई है सूर्यपुत्र कर्ण, उसमें कर्ण को भगवान से भी बड़ा बताया. जीवन भर जिसने असत्य का साथ दिया, आप उसको इतना बड़ा धर्मात्मा बताओगे, पर ये खुद फेमस होने के लिए. तो इतना सारा करने की जरूरत, महापुरुषों की कमी थोड़ी है. उसमें जो चीज अच्छी है उसको अच्छी कहो, पर उसको आप इतना बड़ा चढ़ा करके पेश करते हो. अभी कोई दुर्योधन के ऊपर सीरियल बनाएगा और उसमें दुर्योधन को बड़ा युधिष्ठिर से भी धर्मात्मा बताएगा. ये सब कल्पित वस्तुएं, कल्पना से लोगों में प्रसिद्धि पाने के लिए सारी चीज कि કંઈક જુદું કરીએ. જુદું કરીએ એટલે આપણા ઉપર બધી નજર આવશે. अभी बीच में एक सीरियल आया था जोधा अकबर. अकबर को बड़ा महान बताया उसमें और महाराणा प्रताप को नीचे कर दिया है उसमें. तो आप क्या साबित करना चाहते हैं इससे? उन्होंने जो भी किया, जो सब, इसका मतलब गलत थे. प्रताप गलत थे, अकबर सही था. राम गलत थे,
आप रावण की इतनी सारी अच्छाइयाँ बताते हो, इसका मतलब राम गलत थे, रावण सही था। सिद्धि तो यही होती है, और क्या सिद्धि होगी इसमें? सम्यक दृष्टि जीव ज्ञानी जीव होते हैं जो जैसा वैसा मानता है। रावण को रावण के जैसा मानता है, रावण के तरीके से मानता है, उसमें जो था उस रूप में मानता है, पर उसको रावण से कोई द्वेष नहीं है। राम को राम की तरह मानता है, राम से कोई राग नहीं। हमारा तो न रावण ने कोई हानि की है न राम ने भला किया है। हमारा तो सब हमारे हिसाब से हो रहा है, हमारे कर्म उसका फल हमको मिल रहा है। ज्ञानी जीव की ऐसी दृष्टि होती है, किसी से राग नहीं, किसी से द्वेष नहीं। इतने सारे तीर्थंकर हो गए हैं, भगवान हो गए हैं सब, अच्छा उनसे अपना क्या लाभ? अपना कोई लाभ? अपना कोई लाभ नहीं। इतने सारे लोग नरक में हैं, खोटे खोटे काम करेंगे, इससे अपने को कोई हानि? इससे हमको कोई हानि भी नहीं। किसी भी अन्य व्यक्ति से हमको कोई लाभ हानि नहीं है, हमको तो हमारे से ही लाभ हानि है कि हम कैसे हैं, हमारी परिणति कैसी है, हमारे परिणाम, हमारे भाव कैसे हैं, उससे हमको मतलब है। अपने आप का सुधार किया जाए, जगत में जो भी है जैसा है उसको वैसा स्वीकार कर लो। कोई सुख दुख किसी से जोड़ो मत। अभी गर्मी के दिन हैं, तो गर्मी के दिनों को अब गर्मी के दिनों की तरह ही लो। कोई पूछे, यार गर्मीना દિવસો ચાલે છે, તમને લાગે છે ગરમીના દિવસો? तो ना ना, मन तो जरा गर्मी लगती ज नहीं। पर आपको गर्मी के दिन है तो गर्मी लगेगी, इसमें क्या है? हाँ, आप दिन भर ऐसी में बैठे रहो तो कहाँ से गर्मी लगेगी? पर आप बाहर घूमने फिरने जाओगे तो आपको गर्मी लगेगी कि नहीं? अगर आपको गर्मी नहीं लगती, इसका मतलब आपका ज्ञान बराबर नहीं है। क्योंकि ज्ञान गर्म को गर्म जानेगा, ठंडे को ठंडे जानेगा। गर्म पानी में आप उंगली डालोगे तो आपको गर्म लगेगा कि ठंडा लगेगा? और अगर किसी को ठंडा लगता है कि इसका मतलब उसके अंदर जीव नहीं है, कुछ गड़बड़ हो रहा है, ज्ञान में प्रॉब्लम हो रही है, कुछ बीमार लगता है वो व्यक्ति। जिसका ज्ञान सही पकड़ता नहीं है वो बीमार कहलाता है। तो गर्मी है बस, इसमें क्या है? पर गर्मी को गर्मी की तरह जानो, उससे अपना सुख दुख जोड़ो मत। ठंडी को ठंडी की तरह जानो, उससे अपना सुख दुख मत जोड़ो। वो ठंडी ठंडी है, गर्मी गर्मी है, अच्छा अच्छा है, बुरा बुरा है, जो जैसा है वैसा है। ये अधिक पुरुषार्थी सम्यक दृष्टि जीव है। ज्ञानी कहो, सम्यक दृष्टि कहो, ये सब एकार्थवाचक ब्रह्म ज्ञानी कहो, तो ऐसा सम्यक दर्शन एक बार जीव की दृष्टि खुलती है तो क्या होता है? सम्यक दर्शन थी जीव ऊपर जाने जादू पथराई जाए, जादू हो जाता है। जैसे कोई जादू करता है, सब बदल जाता है ना, दुनिया सारी, ऐसा सब देखने की दृष्टि बदल गई। अब यहां उसको कोई दुखदायी नहीं लगता है, कोई कष्टकारी नहीं लगता है, कोई समस्या तो लगती ही नहीं है। पहले हर कोई वस्तु समस्यात्मक लगती थी, प्रॉब्लम, समस्या खत्म, कोई समस्या ही नहीं, कोई दुख ही नहीं है। ज्ञान दृष्टि खुल जाती है। दृष्टि ज्ञानमयम कृत्वा पश्येद ब्रह्ममयम जगत, ऐसा श्रुति का वाक्य है कि दृष्टि को ज्ञानमय करके जगत को ब्रह्ममय देखो। जगत वास्तव में क्या है? ब्रह्ममय ही है, आत्मरूप ही है। इसलिए तो कहते हैं जगत आत्मरूप मानवामा आवे। जगत कोई आत्मा से अलग वस्तु तो है नहीं। जो जगत अपने अंदर है उसकी बात कर रहे हैं। बाहर का जगत तो बाहर ही है, वो तो अनात्मा ही है, वो नहीं है।
जो मुझे सामने दिख रहा है वो मैं नहीं हूं, पर इन सामने वालों का जो ज्ञान मेरे अंदर हो रहा है ना, वो मैं हूं। हमको जो जो भी अपने अंदर ज्ञान में आ रहे हैं वो सब मैं ही हूं, और जो जो ज्ञान में पदार्थ आ रहे हैं वो दूसरे नहीं हैं। समझ में आ रहा है? तुम्हारा नाम समझ? अर्पण। आप आईने के सामने जाके खड़े हो जाते हो, ठीक है? उस आईने के अंदर आपको क्या दिखेगा? चेहरा दिखेगा। किसका? चेहरा ही दिखेगा कि सब दिखेगा? जो भी है, जितना उसका। अच्छा, वो जो आईने में जो दिख रहा है वो कौन है? वो आप हो? दर्पण है? तो कौन है? अभी आप उसके सामने नहीं आए थे, तब तक तो उसमें कुछ नहीं दिख रहा था। जैसे ही आपने सामने आए तो उसमें से आपके जैसा कोई दिखता है तो वो आप हो के नहीं? आप नहीं हो। क्यों नहीं हो आप? क्योंकि आप तो प्रत्यक्ष बाहर खड़े हैं ना, आप तो प्रत्यक्ष ही बाहर हैं, वो आप कैसे हो सकते हैं? आप तो अंदर नहीं घुसे ना, आप तो घुसे ही नहीं। तो अंदर जो दृश्य पड़ रहा है वो कौन है? वो प्रतिबिंब आपका है, वो प्रतिबिंब आपका है। तो आपके बिना हो सकता है? अब आप कह रहे हो आपका भी वो प्रतिबिंब नहीं है, और आप कह रहे हो आपका मतलब इस शरीर का, आपका नहीं। तो शरीर का प्रतिबिंब है कि कुछ और है? कि वो दर्पण का है? वो किसका अंश है ये बताना आपको। फैसला ये करना है कि वो जो प्रतिबिंब है वो जिसका भी हो उसका प्रतिबिंब उसका, पर वो अंश किसका है? इस शरीर का अंश है कि उस दर्पण का भाग है? अग्रोची। ऐसे ब्रह्ममय दृष्टि करनी पड़ती है। ये जब ज्ञान नहीं होगा तब तक ब्रह्ममय दृष्टि। शरीर का हिस्सा तो कहां से हो सकता है? अभी आप वहां बैठे हो, हाँ, शरीर तो आपका, वो शरीर का हिस्सा तो आपका हाथ है, आपका पैर है, आपका सिर है। शरीर का हिस्सा हो तो वो जो प्रतिबिंब है ना, उस प्रतिबिंब में रक्त भी होना चाहिए, रस भी होना चाहिए, वीर्य भी, सारे प्रकार की धातुएं उपधातुएं होनी चाहिए ना उसमें। पर उस प्रतिबिंब में शरीर का कोई गुण नहीं है, छाया है। किसकी है? अब शरीर पुद्गल है, इस पुद्गल के निमित्त से वो जो दर्पण है ना, वो दर्पण उस रूप हुआ है, उसकी योग्यता ऐसी। दर्पण की उस विशिष्ट प्रकार के पुद्गलों की ऐसी योग्यता होती है कि वो जो सामने वस्तु होती है उस आकार रूप वो परिणत हो जाते हैं। जैसे हम स्वच्छ पानी में तालाब में गए, ठीक है, और आपने देखा तो क्या दिखेगा? चेहरा दिखेगा, प्रतिबिंब दिखेगा। तो वो हम है कि पानी है? हम तो यहां खड़े हैं बाहर किनारे पे, हम कहां से हो गए? वो शरीर की, शरीर की जब का के की ये शब्द जहां लगाएंगे तो वो संबंधवाचक है। छठा कारक है ना, संबंध कारक। तो का के की, इसका मतलब उसके साथ उसका संबंध है, स्व स्वामी संबंध। तो क्या छाया के साथ इस शरीर का स्व स्वामी संबंध है? छाया में शरीर के कोई गुण है कि नहीं? स्वस्वामी संबंध का मतलब ऐसा होता है कि वो जिसका है उसके अंदर उसके गुण होने चाहिए। जैसे आपने बाल्टी में से
एक गिलास पानी निकाला तो अलग किया, उस एक गिलास पानी में बाल्टी के पानी है उसके सारे गुण हैं कि नहीं? इसका मतलब वो एक गिलास पानी बाल्टी का अंश है, क्योंकि उसमें उस पानी के सारे गुण धर्म हैं। क्या उस छाया में इस शरीर के गुण धर्म है? जो प्रतिबिंब पड़ रहा है पानी में, उसमें कोई गुण धर्म है क्या? शरीर के गुण धर्म नहीं है, इसका मतलब वो शरीर तो नहीं है। इतना समझ में आ गया ना? पुद्गल की पर्याय है, ये अलग बात है, पर इस शरीर रूपी पुद्गल की पर्याय वो नहीं है, वो उसकी एक छाया पर्याय है। और वो छाया पर्याय का निर्माण भी कैसे हुआ है? पानी उसका उपादान है, शरीर उसका उपादान नहीं है, पानी उसका उपादान है। पानी में ऐसी योग्यता है कि किसी के कोई बीच में निमित्त आए, सूर्य का प्रकाश हो और कोई उसके बीच में आ जाए और ऐसी प्रतिछाया बने तो पानी उस आकार रूप हो सकता है। ऐसी योग्यता उस पानी की है, जो जिसका उपादान होता है उसका वो अंश होता है, निमित्त का अंश नहीं होता है। शरीर तो उस छाया में मात्र निमित्त है, सूर्य भी निमित्त है। जब तक सूरज का प्रकाश अपने शरीर पे पड़ता है, ठीक है, तो फिर प्रतिछाया बनती है। अंधेरे में किसी की प्रतिछाया नहीं बनती, प्रकाश की उपस्थिति में बनती है ना। तो प्रकाश उस छाया का निमित्त है, शरीर उस छाया का निमित्त है, और पानी उसका उपादान है। पानी उस रूप हो रहा है क्योंकि पानी में ऐसी योग्यता है कि किसी निमित्त को पाकर के वो उस रूप हो सकता है। अब जो पानी के ऊपर छाया पड़ी है वो पानी रूपी है, क्योंकि पानी से उसको आप अलग नहीं कर सकते। आप ऐसा कर सकते हैं उस छाया में कि उसमें से थोड़ी थोड़ी वो पेट वाली छाया है ना, वो निकाल लो मैं, उसके साथ क्या आएगा? पानी आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि वो पानी के साथ उसकी प्रदेश अभिन्नता है। ऐसा नहीं है कि पानी और वो छाया अलग अलग, पानी ही उस रूप हुआ है। और जैसे ही वो आप दूसरी जगह जाओगे तो उस जगह का पानी उस रूप होगा। आप ऐसा चाहोगे कि भाई अभी थोड़ा इधर हट गए तो उस पानी में छाया पड़ेगी, उस समय वो पानी उस रूप हुआ है। आप जहां जहां जाओगे उस पानी की वैसी योग्यता है कि उस रूप हो, और जो कीचड़ वाला पानी होगा उसकी योग्यता वैसी नहीं होगी तो वैसा नहीं भी होगा, क्योंकि उसकी योग्यता ऐसी नहीं है। अपने को क्या विषय चल रहा था? दृष्टि ज्ञानमयी कृत्वा दृश्येत ब्रह्ममयम जगत। दृष्टि को ज्ञानमय करके अपने को जगत को ब्रह्ममय देखना है। अब दृष्टि ज्ञान की करी, क्या ज्ञान की करी? कि इस ज्ञान में जो जो विश्व के पदार्थ प्रतिबिंबित होकर के आ रहे हैं उसका मूल प्रक्षेपण ये आत्मा जीव कर रहा है। इसका मतलब जो जो हमारे ज्ञान में आ रहा है वो सब जीव रूप है, आत्मा रूप है। इसलिए का ब्रह्ममयम जगत। ये जगत कैसा है? ब्रह्ममय है। ये पेन अपने उपयोग में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर मैं इसको नहीं जानूं तब तक इस पेन का अस्तित्व और मेरे से कोई मतलब नहीं इससे। बहुत सारे पदार्थ ऐसे हैं जो हमारे अभी दृष्टि में नहीं आ रहे हैं, ज्ञान में नहीं आ रहे हैं, तो वो मैं रूप नहीं है, वो पदार्थ रूप है। पर ये पेन मेरे ज्ञान में आ रहा है, इसका मतलब मेरे ज्ञान में जो ज्ञान की पर्याय है वो जो पेन आ रहा है वो मैं हूं, ये पेन मैं नहीं। और वो तो आत्मा ही है, वो पेन नहीं है। पेन के निमित्त से ऐसा आकार आ रहा है। इसलिए इस संसार में जो जो भी हमको दिख रहा है, जो जो भी अनुभव में आ रहा है, वो आत्मा में उसका प्रतिबिंब बनता है, और वो जो प्रतिबिंब बन रहा है वो तो आत्मा ही है। इसलिए ज्ञान ही ज्ञेयाकार होता है। इसलिए ब्रह्म ही जगदाकार होता है। आप जैन की भाषा में बोलो तो ऐसा बोलो, ज्ञान ही ज्ञेयाकार होता है। आप वेदांत की भाषा में बोलना तो ऐसे बोलो, ब्रह्म ही जगदाकार होता है, जगदीश ही जगदाकार होता है। जगदीश मतलब आत्मा, और बाकी का
क्योंकि उसके अंदर जो विश्व है वो है। इससे अब जब हम ही हैं तो हम उससे राग क्यों करेंगे, द्वेष क्यों करेंगे? तुम शादी करी लगन, अच्छा आपकी पत्नी को भी याद करो, आप याद आ रही? हाँ, आपको जो याद आ रही वो कौन है? आपकी पत्नी है, पक्का? आपकी पत्नी अभी कहाँ है? और आपके उपयोग में चल रही है वो कौन है? तो वो आप हो कि आपकी पत्नी है? हमारी कल्पना, हमारी सोच वो हम है कि पर है, ये बताओ आप। तो आप उसको पत्नी क्यों कहते हो? हम भ्रम से ऐसा कहते हैं कि मेरी पत्नी की याद मेरे को, कहां से आपकी पत्नी की याद आ रही है? पर आपकी पत्नी वहां है। वो जो आपने अंदर कल्पना कर रखी है, ऐसा चित्र खड़ा किया है, और क्योंकि वो देख रहे, उसके निमित्त से आपकी एक स्मृति बनती है, और आपके चित्त पटल पर उभर करके वो स्मृति आती है, चित्र बनता है। वो आपके चित्त पटल पर जो आ रहा है वो आप ही हैं, वो नहीं है। और जब हम ही हैं तो फिर उससे राग क्या करना, द्वेष क्या करना? समझ में आ रहा है कि वो पत्नी है, वो नहीं है, ये पत्नी भी हम ही है, पिता भी हम ही है। जो दृश्य आत्मा में दिखता है वो सब दृश्य दृष्टा है। सारे दृश्य दृष्टा हैं क्योंकि वो दृष्टा का भाग है। दृष्टा ने, क्योंकि इस आत्मा का ऐसा स्वभाव है कि सामने वाला जैसा होता है उस रूप ये परिणमित हो जाता है, रूप ऐसा हो जाता है उसका। आप कल्पना आत्मा के बारे में करोगे ना, भी मैं बहुत छोटा हो गया हूं, छोटा 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 छोटा, ऐसा अणु जैसा हो गया हूं, ऐसा आप कल्पना करो, आपको ऐसा ही लगेगा। धीमे 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 आपकी भावना अगर बहुत बलवती होगी तो आप अणु जैसे छोटे लगोगी, अपना आप फील होगा ऐसा। और आप ऐसा कल्पना को भी मैं धीमे धीमे बड़ा हो रहा हूँ, फैल गया हूँ, फैल गया हूँ, फिर इस पूरे हॉल के जितना हो गया हूँ, आपको ऐसा लगेगा। और मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ। कैसे लगे? कल्पना से। आप तो वहीं के वहीं हो, बैठे हुए वहीं, पर आपने जो अंदर आत्मा कल्पना करता है वैसी वो अनुभूति करता है, ऐसा भास होता है उसको। एक भाई ने भैंसा का मंत्र सिद्ध करने के लिए, मैं भैंसा हूँ, मैं भैंसा हूँ, मैं भैंसा हूँ, ऐसा करता रहा कई दिनों तक, 6 महीने तक मंत्र जाप किया उसने। और फिर 6 महीने बाद उठा तो वो बाहर निकलने लगा, तो वो कहा कि भाई दरवाजा बड़ा करो क्योंकि इसमें मेरा सींग फंस रहा है। अब उसके सींग नहीं है, पर उनको लगा कि मेरे सींग आ गए। क्यों? कल्पना। ये कल्पना है, आत्मा का प्रक्षेपण है, और कुछ नहीं। ऐसी बहुत कल्पनाएं इस जीव ने मोह से कर रखी हैं कि इस जगत में जो दिख रहा है वो सब इस आत्मा का प्रक्षेपण है, पर यह मानता कि पर है, और पर के साथ ही राग द्वेष होंगे। कोई भी व्यक्ति अपने साथ राग द्वेष नहीं करता है, करता है दूसरे के साथ ही राग द्वेष होते हैं। इसलिए ये दृष्टि ज्ञानमयी करी नहीं है, और जगत को ब्रह्ममय जाना नहीं है। इस कारण से राग द्वेष की बुद्धि हो रही। इसलिए हमारी लड़ाई और कहीं नहीं है, बाहर नहीं है। हमारी कोई निंदा करता है तो हमको बुरा क्यों लगता है? हमारे तो ज्ञान में आया ना, वो शब्द किसने सुने? हमने सुने, हमारी पर्याय ने ग्रहण किए हैं उस शब्द को, और उसका काम क्या है? ग्रहण करना उसका काम है। सुनना आत्मा का काम है, पर इसको यूं लगता है ये देखो मुझे कह रहा है। जब मुझे कह रहा है ऐसा कहेगा तो बुरा लगेगा, जब थोड़ी अच्छी बात प्रशंसा करेगा तो उसको लगेगा ये मुझे कह रहा है। पर ऐसा इस आत्मा का काम ऐसा तो है नहीं।
वास्तविक वस्तु को बराबर जाना नहीं है, इसलिए सब संसार खड़ा हो गया है। अंदर का संसार छोटा सा ही होता हो, हर एक जीव ने अपना छोटा सा संसार बना के रखा है, उसी के इर्द गिर्द उसका उपयोग घूमता रहता है। उसके घर, उसकी पत्नी, उसके बच्चे, उसके माता पिता, उसके सगे संबंधी, और बस ये अपना संसार। इनके प्रति उसको बहुत आत्मबुद्धि है, आत्मीय बुद्धि है। बस इसके अतिरिक्त उपयोग उसका मन, उसका चित्त कहीं जा ही नहीं सकता है, किसी को स्वीकार भी नहीं कर सकता है। बस छोटा सा कूप मंडूक होकर के वो रह रहा। अगर वो अपना विस्तार करे तो सारे विश्व के प्रति जब समस्थिति में आएगा, तब उसका न कोई अपना रहेगा, न कोई पराया रहेगा। ये दृष्टि है, इसको सम्यक दृष्टि कहते हैं। ऐसी सम्यक दृष्टि जिनके प्राप्त हुई है, उस जीव को देखो वो जगत में कैसे जीता है। अहो तेने कौनी उपमा आपिए। अब उसको उपमा किसकी दी जाए? निरुपम है, अनुपम है। अब उसकी फीलिंग कैसी होती है वो बताते हैं। જેવું વીજળીના અલ્ટરનેટિવ કરંટથી એટલે એસીથી ચાલતું લોખંડનું પૂતળું હોય તેવી તેની દશા થઈ જાય છે। एकदम एनर्जेटिक चार्जेबल है। क्यों? जागृत है, ज्ञान है। जहाँ ज्ञान है, संवेदना है, वहाँ पर उत्साह है। इसलिए देखना ज्ञानी लोग बड़े उत्साहित रहते हैं। उत्साहित रहते हैं मतलब आकुल व्याकुल नहीं रहते हैं, पर कभी भी चेहरे पर मायूसी नहीं रहेगी, शांति रहेगी, प्रसन्नता रहेगी, गंभीरता रहेगी, मायूसी नहीं रहेगी, क्योंकि एनर्जेटिक है। मायूसी किसकी होती है पता है? जो अपसेट रहता है, अंदर दुख है, विषाद है, वो मायूस रहता हमेशा। शू करिए, संसार में फसी गया छे, बधा घणा दुख आपे छे, संसार में कई सुख दुख नहीं, जहाँ जो त्या दुख दुख ने दुख छे, ऐसा करता रहता है। और फिर वो समाचार सुनता है, टीवी देखता है, न्यूज़ चैनल, फिर से वो अपसेट होता है, बधु गड़बड़ थाय छे। कोई संसार में सारो वस्तु थतुं ज नथी, कहीं बराबर नहीं, जराए बस आपने तो शू करो, ऐसा करके वो इतना मायूस होता रहता है, बहुत अधिक। ये अज्ञानी जीव है, मायूस होता रहता। और ज्ञानी जीव है कभी मायूस नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसको ऊर्जा अंदर से मिल रही है, बाहर से थोड़ी मिल रही है। संसार में कोई खराब भी हो गया तो उससे क्या, और संसार सोने का हो गया तो भी उससे क्या। इस विश्व में प्रलय भी आ जाए तो उसको क्या, और ये सुवर्णमय हो जाए ये संसार, तो उसकी आत्मा का क्या भला हो जाने वाला। एक भी प्रदेश बढ़ जाने वाला, एक भी गुण बढ़ जाने वाला, कोई क्वालिटी बढ़ने वाला नहीं है, और कोई क्वालिटी उसकी घटने वाली, क्योंकि उसको आत्मनिष्ठा हो चुकी है, आत्मश्रद्धा हो, इसलिए हमेशा ताजा रहता है। हजारों की भीड़ में भी ताजा रहेगा, और अकेला होगा तो भी हमेशा तरोताजा रहेगा। ये अनुभवी ने एकला आनंद मारे वो रे, अनुभवी ने एकला आनंद मारे वो रे, भजवा परी ब्रह्म ने बीजू काई न केवू रे, भजवा परी ब्रह्म ने बीजू काई न केवू रे, अनुभवी ने एकला आनंद मारे वो रे। એટલે अनुभवी ने एकला आनंद में रहो। एकला मतलब यहाँ मात्र आनंद में रहना, अकेले रहना ऐसा नहीं कहा है। एकला आनंद में रहो, दुख में रहो नहीं, उसको केवल आनंद में रहना चाहिए ना। एकला जंगल में रहो एम नहीं एनो अर्थ, एकला मात्र आनंद में रहो बस।
और वो मात्र आनंद में रहता है, प्रसन्न रहता है, सब शांत, गंभीर, प्रसन्न। ये सत्संग, ज्ञान, सच्ची समझ, यही अपने को हमेशा आनंद में रख सकती है। जिसके अंदर विवेक नहीं है, सम्यक दृष्टि नहीं है, वो कभी भी आनंद में नहीं रह सकता है। सम्यक दृष्टि है तो दुख में भी सुखी है, और अगर विपरीत दृष्टि है तो बहुत है तो भी दुखी है। संतोष नहीं है, स्व की जागृति। ऐसे व्यक्ति को क्या होता है? એટલે કે વારંવાર તેના આત્માનો ચિદબિંબ ગોળો આ શરીરથી જાણે કે છૂટો પડી જાય છે અને પોતાના શરીરને જ બીજી કોઈ પણ જડ વસ્તુની જેમ તે અનુભવે છે। आनंद आनंद कोई अनुभव करता है, आनंद में शरीर कहां, बताओ? जो केवल एक आह्लाद की अनुभूति करता है उसको शरीर की अनुभूति कैसे होगी? शरीर की अनुभूति तो तब होगी जब अपना उपयोग शरीर पे जाएगा, अपना ध्यान शरीर पे जाएगा। पर उसके ध्यान में तो हमेशा एक शांति, आनंद, प्रसन्नता ही है, तो शरीर पे उपयोग जाएगा कहाँ? इसलिए शरीर से अलग है ऐसा ही मालूम होता है। जैसे नारियल होता है ना, सूख जाता है, सूख जाता है तो उसके अंदर का गोला है वो अलग हो जाता है। अब बाहर से कोई देखता है तो नारियल इसका शरीर सहित दिखता है, पर अंदर से वो अलग है। ऐसे ज्ञानी की दृष्टि केवल अपने आत्म तत्व पर है, इसलिए वो केवल उस चिद और आनंद की अनुभूति कर रहा है, इसलिए शरीर की अनुभूति रहती नहीं। कभी निर्विकल्प रूप से, संपूर्ण रूप से नहीं रहती है, और फिर सविकल्प रूप से बुद्धिपूर्वक वो भेद ज्ञान करता है, तो बुद्धिपूर्वक भी उसके इस प्रकार का एहसास होता रहता है। ऐसा लगता है जैसे शरीर है वो कोई दूर की वस्तु, जैसे कोई दूर की वस्तु, ये दूर की वस्तु है, ऐसे शरीर की भी दूर की वस्तु लगती है। जैसे इसमें कुछ करो तो उसको कोई तकलीफ नहीं होती है, ऐसा भी यहां कुछ करो तो यहां भी तकलीफ नहीं हो रही, क्योंकि इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है। ये भी जड़ है और ये भी जड़ है, ये भी ज्ञान का विषय है, ये भी ज्ञान का विषय है। इसको जैसे जानता है वैसे इसको भी जानता है, अतन्मय होकर के। जिसने अपने आत्मा को म्यान और तलवार की तरह अलग अनुभव किया है, उसकी बात यहां पर चल रही है। वारंवार तेने पोताना शरीरमा अने जगतना बीजा जड़ पदार्थों काई भेद नथी एम प्रत्यक्ष अनुभव थी जणाय छे। बार बार उसको होता है कि इस शरीर में और इस टेबल में क्या अंतर है? ये भी मेरे ज्ञान का विषय है, ये भी मेरे ज्ञान का विषय है। ये भी जड़ है और ये भी जड़ है, ये भी जीव रहित है और ये भी जीव रहित है। शरीर में जीव होने से कोई शरीर जीव नहीं हो जाता है, हो जाता है। घड़े में घी डालने से घड़ा घी नहीं हो जाता है। अपन कहते हैं ना घी का घड़ा, क्या घी का घड़ा है? घड़ा किसका है? घड़ा घी का है कि मिट्टी का है? घड़ा तो मिट्टी का ही है, घी का क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें घी रहता है। उसी प्रकार से ये शरीर और आत्मा हैं। इस शरीर में क्या रहता है? चैतन्य तत्व है, आत्मा रहता है। इसलिए इसके ऊपर कभी ऐसा आरोप आता है कि ये जीव है, पर क्या वास्तव में ये जीव है? जैसे घड़ा घी का नहीं है, उसी प्रकार शरीर आत्मा का नहीं है। आत्मा आत्मा है, शरीर शरीर है। और जब तक इस प्रकार का ज्ञान प्रकट नहीं होगा, तब तक जीव को दुख दुख और
दुखी है, कभी सुखी नहीं हो सकता है। जो अपने आप को शरीर मानता है वो कभी सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि सारे सुख और सारे दुख जो संसारिक काल्पनिक, वो सब इस शरीर को अपना मानने से प्रारंभ होते हैं। देहात्म बुद्धि है वो समस्त दुखों की जननी है। हम इस शरीर को जब अपना मानेंगे तो इस शरीर से जितने संबंध वाले लोग वो भी अपने और पराये हो जाएंगे। फिर इस शरीर के जो अनुकूल होगा वो हमें प्रिय होंगे तो उसमें राग होगा। ये जो शरीर के प्रतिकूल होंगे वो अप्रिय होंगे, उसमें द्वेष होगा। और इस प्रकार से राग और द्वेष की परंपरा चलेगी और जीव कर्म बांधेगा, पाप और पुण्य बांधेगा। पाप बांधेगा दुर्गतियों में जाएगा, पुण्य बांधेगा स्वर्ग आदि सदगतियों में जाएगा। पाप का फल भी भोग करके फिर दूसरी गति में जाता है, पुण्य का फल भोग करके फिर दूसरी गति में जाता है। पुण्य करी अमरापुरी पामियो अंते 84 माई, अंत में इस 84 में ही भटकता रहता है। इसलिए बहुत प्रयत्न करके अपने को सत्संग के द्वारा, ज्ञानियों के वचन के द्वारा, गुरुपदेशाद अभ्यासा संवित्तो स्व परांतरम जानाति स जानाति आत्मतत्वम निरंतरम मोक्ष सौख्यम निरंतरम। 3 साधन बताए। निरंतर रहने वाले अगर मोक्ष सुख का अनुभव करना है तो कैसे करना, उसके 3 साधन। गुरुपदेशाद, पहला गुरु के उपदेश से इस शरीर और आत्मा को भिन्न जानो उपदेश के द्वारा। फिर अभ्यासात, फिर जैसा उपदेश है वैसा अभ्यास किया जाए। यार सत्संग में गुरु जी ने बताया कि आत्मा ज्ञान स्वभावी है, जानना उसका काम है। तो जो जानता है वो मैं हूं, जो ज्ञान में आ रहा है वो मैं नहीं। राग द्वेष करना मेरा स्वभाव नहीं, क्रोध करना मेरा स्वभाव नहीं, अभिमान करना मेरा स्वभाव नहीं, मायाचारी करना मेरा स्वभाव नहीं, लोभ करना मेरा स्वभाव नहीं। ये सब मेरा स्वभाव नहीं है, विकार है। इसलिए मुझे नहीं करना है ऐसा अभ्यास। फिर अभ्यास, फिर अनुभव, संवित्त। अपने अनुभव से फिर अपने समझ में आ जाएगा कि वास्तव में जो गुरु जी कह रहे थे वो सही बात है, कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं तो शांत निराकुल चेतन तत्व हूं। और वो अपने हृदय प्रदेश में हम उसका अनुभव करेंगे। और इस प्रकार से जो जानता है वो जानाति यह स जानाति मोक्ष सौख्यम निरंतरम, वो निरंतर रहने वाले मोक्ष सुख को जानता है। इसलिए सत्संग करके, महात्मा ज्ञानी पुरुषों का सानिध्य का सेवन करके, उनकी आज्ञा में रह करके, आत्मा और अनात्मा का विवेक करके हमको इस शरीर की माया को छोड़ करके अपने आत्मस्वरूप में तल्लीन होने का प्रयत्न करना चाहिए। ये ही समस्त आगमों का सार है। ज़्यादा पुरुषार्थ अपने इसमें लगाना चाहिए। तो ये जो कहा है ना वो अनुभव में आएगा। फिर हमारी दीनता समाप्त हो जाएगी। इसके पास थोड़ा मजा आता है मेरे को, इसके पास थोड़ा मजा आता है। अरे यार તમે મારે પાસે રહો ને तो મને जरा मजा आवे। अब किसी के पास भीख नहीं मांगनी पड़ेगी आपको। हाँ, क्यों? खुद आनंद स्वरूप। और उसके पास जो रहेंगे वो सब आनंदित रहेंगे। प्रकाश को किसी दूसरे प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, परंतु जो उस प्रकाश में आता है वो जरूर प्रकाशित हो जाएगा। दीपक को टॉर्च की जरूरत पड़ती है? नहीं पड़ती। सूरज को टॉर्च की जरूरत पड़ती है अथवा किसी और सूरज की जरूरत पड़ती है? नहीं पड़ती। चांद को किसी और चांद की जरूरत पड़ती है? नहीं पड़ती। पर उस चांद और सूरज के प्रभाव क्षेत्र में जो आ जाएगा वो जरूर चमक जाएगा। इसलिए अपने को सूरज बनने का प्रयत्न करना चाहिए। अंधकार अपने पास रहेगा ही नहीं।
और जो अपने प्रभाव क्षेत्र में आएगा उसके पास भी अंधकार नहीं रहेगा। अपदीपो भव। उसके लिए धर्म का सेवन जरूरी है। धर्म अहिंसा परमो धर्म ही सच्चा जानो, जो पर को दुख दे सुख माने उसे पतित जानो। राग द्वेष मद मोह घटा आत्म रुचि प्रगटावे, धर्म पोत पर चढ़ प्राणी भव सिंधु पार जावे। वीतराग सर्वज्ञ दोष बिन श्री जिन की वाणी, सप्त तत्व का वर्णन जामे सबको सुखदानी। इनका चितवन बार बार कर श्रद्धा उर धरना, मंगत इसी जतन ते एक दिन भव सागर तरना। मंगत इसी जतन ते एक दिन भव सागर तरना। बोलो महावीर स्वामी पंच परमेष्टि परम कृपालु सद्गुरु सब संतन की जय। शुद्ध आत्मदेव की जय। सद्गुरु।